بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ بچپن میں ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ضرور سنی ہوتی ہے جو غیر معمولی ہونے کی وجہ سے ہمیں ساری عمر یاد رہتی ہے اور کبھی نہیں بھولتی، جسے ہم بھلانا بھی چاہیں تو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی لمحہ اسی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ تو دوستو، مجھے ایک کہانی یاد ہے جو میرے ابو نے مجھے سنائی تھی۔ جنات کے واقعات بہت دلچسپ ہوتے ہیں اور اپنی اسی خصوصیت کی وجہ سے ہمیشہ ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں لڑکپن میں تھا۔ پڑھائی ختم کر کے میں کسی اچھی نوکری کی تلاش میں دن گزار رہا تھا۔ اس وقت دنیا نے ترقی کی دوڑ میں اتنا آگے کا سفر طے نہیں کیا تھا۔ لوگ موبائل اور دوسری کمپیوٹرائز چیزوں سے دور زندگی کافی پرسکون گزار رہے تھے۔ بجلی کئی علاقوں میں موجود نہیں تھی اور ہمارا گاؤں بھی انہی علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ مزاج اور ملنسار تھے۔ برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے۔ ان کے دل کسی بھی قسم کے بغض اور حسد سے پاک تھے۔ وہ لوگ سادہ لباس اور سادہ غذا کو ترجیح دیتے، اس لیے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ میرے گھر میں دادا، دادی، میری والدہ اور مجھ سمیت کل 4 افراد رہتے تھے۔ ایک بہن شادی شدہ تھی جو 2 بچوں کی ماں تھی اور کبھی کبھار ہی میں کے آتی۔ میرے والدین کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں لوگ سوشل میڈیا کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ ان کی زندگیاں ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی۔ میرے دادا کی گاؤں کے لوگوں سے خوب دال گلتی تھی۔ شام کو کبھی ان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھک سجتی تو کبھی شاعری، کبھی قصے، کہانیاں اور لطیفے محفل کو 4 چاند لگا دیتے اور شام کو بڑی مشکل سے محفل برخاست کی جاتی۔ چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو پورا پنڈ مل کر انجوائے کرتا۔ خیر، میں نے نوکری کی تلاش کی تو تقریباً ہر ہفتے میں شہر کا چکر لگاتا اور مختلف دفاتر کی خاک چھانتا، مگر کئی لوگ تو مجھے دیہاتی اور چہرے سے جھلکتی سادگی دیکھ کر ہی واپسی کی راہ دکھا دیتے، اور کبھی میرا میرٹ پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ دادا اور ان کے کچھ دوستوں نے مجھے خوب سمجھایا کہ پرائی نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زمینوں پر کام کروں، مگر مجھ پر چونکہ شہر کی روشنی اپنا اثر دکھا چکی تھی، سو میں کسی طور نہیں مانا تو سب نے سمجھانا بھی چھوڑ دیا۔ اس روز بھی محض صبح کے وقت تیار ہو کر شہر جانے کے لیے نکلا۔ گاؤں میں کسی سواری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ گاؤں سے باہر نکل کر شہر جانے والی سڑک تک پیدل ہی جانا پڑتا۔ سو میں بھی اس وقت خراما چل رہا تھا کہ مجھے راستے میں اپنا دوست عادل مل گیا۔ ارے محسن، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو کر بولا۔ اسے دیکھ کر کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور ہم دونوں ایک اسکول میں پڑھ چکے تھے۔ میں شہر جا رہا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہارا یہ محنتی دوست کچھ کرنے کی لگن میں روز ہی شہر کی خاک چھان رہا ہے، مگر ان بدقسمت شہریوں کو میرے ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے بڑے تفصیل سے جواب دیا تو عادل بھی ہنس پڑا۔ تم کہاں چلے؟ میں نے عادل سے پوچھا تو وہ بولا، تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے دادا پچھلے ہفتے شہر میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا کر دوا لائے تھے۔ ان کی دوا سے انہیں کافی آرام آیا، مگر اب دوا ختم ہو گئی ہے تو میں لینے جا رہا ہوں۔ او، تم خامخواہ اتنا طویل سفر کرو گے؟ لاؤ نسخہ مجھے دو، میں واپسی پر لیتا آؤں گا۔ میں نے اپنی خدمات پیش کی تو وہ فوراً انکار کرتے ہوئے سر ہلانے لگا اور بولا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ آج شہر جانے کا یہ قیمتی موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں پتہ نہیں کب نصیب ہو۔ میرے دادا کوئی تمہارے دادا جیسے فراخ دل تھوڑی ہیں جو روز روز مجھے شہر جانے کی اجازت دیں گے۔ اس نے آخر میں رونے والا منہ بنایا تو میں ہنس دیا۔ اچھا بابا، چلو ساتھ ہی چل لیتے ہیں، میں نے کہا اور ہم دونوں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر جنگلی علاقہ شروع ہوتا تھا جو کہ شہر جانے والی سڑک کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، اور دادا کے منع کرنے کے باوجود میں ہر باری جلدی شہر پہنچنے کے چکر میں اسی راستے سے چلا جاتا۔ عادل مجھے اس طرف بڑھتا دیکھ کر وہیں رک گیا اور مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس جنگل میں جنگلی جانور خطرناک ہیں اور شیر، چیتے کھلے عام پھرتے ہیں۔ اس راستے سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ بہادر بنو اور میرے ساتھ چلو، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو عادل بولا، بیٹا
शेर सामने आया तो तुम्हारी सारी बहादुरी उड़न छू हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि रास्ता बदलो और दाएं जानिब पगडंडी से गुजरकर फूलों वाले रास्ते से निकलते हैं। आदिल का मजबूत लहजा देखकर मैंने मजीद बहस करने के बजाय अपना इरादा बदला, मगर उसकी अगली बात मानना मेरे बस से बाहर था। फूलों वाले रास्ते का नाम सुनकर मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या तुम नहीं जानते कि फूलों वाले रास्ते पर जिन्नात का कब्जा है, और सालों पहले महरोश नामी आदमी के कातिल को मारने के लिए वो उस जगह पर उसका इंतजार कर रहे थे। मैं वहां जाने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने एक अरसे से मशहूर उस रास्ते की कहानी सुनाकर आदिल को साफ मना करते हुए कहा तो वह हंस पड़ा। बेवकूफ़ आदमी, उस रास्ते से मैं कई बार गुजरा हूँ, मुझे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सच्ची है, सालों से सुनी सुनाई चली आ रही है। आदिल के कहने पर मैं सोच में पड़ गया। बात तो तुम्हारी ठीक है, तीसरा रास्ता वैसे भी काफ़ी तवील है, मुझे बहादुर बनना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं, मैंने हतमी अंदाज में कहकर बात ही ख़त्म कर दी। ये रास्ता यूं ही फूलों वाले रास्ते के नाम से मशहूर नहीं था, गो कि हमारा पूरा गांव ही बेहद हरा भरा था, मगर ये रास्ता बहुत महकता हुआ था और बड़े प्यारे गुलाब खिले हुए थे जो दिखने में न सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि उन्हें देखकर अंदर तक सरशारी और ताजगी फैल जाती। इंसान खुद को तरोताज़ा और चुस्त महसूस करने लगता। खौफ का तो दूर तक नामो निशान नहीं था। आदिल ने खुश होकर जिताने वाले अंदाज में मुझे देखा। मान गया हूं कि तुम बहुत अक्लमंद हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हम दोनों उसी तरह हंसते मुस्कुराते अपना सफ़र तय करते रहे। उस दिन सुबह सवेरे आदिल का मिलना मेरे लिए मुबारक साबित हुआ और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे बहुत खुशी हुई और वापसी के वक्त मैंने फूलों वाले रास्ते का इंतखाब किया। मेरा डर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। खैर, घर पहुंचा तो ये खबर सुनकर दादा दादी बहुत खुश हुए। हालांकि वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं थे, मगर उस वक्त वो मेरी खुशी में खुश थे और कुछ कहकर मेरी खुशी ख़राब करना नहीं चाहते थे। अगले रोज़ मैं सुबह को बहुत जल्द ऑफिस पहुंचना चाहता था, सो मैंने सोचा क्यों ना दादा अब्बू की साइकिल ले ली जाए, ताकि पहले रोज़ वक्त पर भी पहुंच जाऊं और ऑफिस में नई साइकिल से अच्छा तासुर भी पड़ेगा। पुराना दौर था, लोग छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियां तलाश करते थे। मैंने दादा से इजाज़त ली और उनकी साइकिल पर रवाना हो गया। मैं फूलों वाले रास्ते से गुजर रहा था कि एक 7-8 साल का बच्चा जो स्कूल का यूनिफॉर्म पहने था अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे रुकने के लिए कहने लगा, रुक जाइए भैया। मैंने अचानक ब्रेक लगाई कि कहीं खुदा न खास्ता उसे कोई नुकसान न पहुंच जाए। भैया, मुझे अपनी साइकिल पर रोड तक छोड़ दें प्लीज़, मैंने स्कूल जाना है। उस बच्चे ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो मुझे इनकार करना मुनासिब नहीं लगा। मैंने उसके बैठने के लिए साइकिल रोक दी। इर्द गिर्द के ताज़ा खिलते फूलों की महक सांसों को ताजगी बख्श रही थी। ऊपर दरख्तों पर चिड़ियों की चहकार बहुत भली मालूम हो रही थी। वो बच्चा एक ही जस्त में साइकिल की पिछली सीट पर सवार हो गया। मैं जूं उस रास्ते से निकला, साइकिल का वजन बढ़ता चला गया। पहले तो मैं समझा कि मेरा वहम है, मगर फिर मेरे ओसान खता हो गए और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे याद आया कि दादा ने मुझे इस रास्ते से गुजरने से सख्ती से मना किया था। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। साइकिल का वजन इतना भारी हो गया था कि मेरे लिए पैडल घुमाना मुश्किल हो गया। जोर लगाने की वजह से पाँव में दर्द महसूस होने लगा। आखिरकार मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके सवाल कर डाला, कौन हो तुम? डर की वजह से मेरी जुबान से बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकले थे। आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? वह हंसते हुए बेहद शरारती अंदाज में बोला। मैंने उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि ये जिन का बच्चा है और इस वक्त मुझे तंग करने के इरादे में है। उतरो मेरी साइकिल से, मैंने गुस्से से कहा तो वह हंसने लगा। मुझ पर ये गुस्सा नहीं चलेगा, मैं कहता उतरो, मुझे देर हो रही है, मैंने गुस्से से कहा तो वो उसी अंदाज में बोला। अभी तो उतर रहा हूँ दोस्त, मगर फिर मिलेंगे। उसने अपना हाथ मुसाफा करने के लिए मेरी जानिब बढ़ाया तो ना चाहते हुए भी मुझे उसका हाथ थामना पड़ा। किसी तरह उस बला से पीछा भी तो छुड़वाना था। उसका हाथ मेरे हाथ को छुआ तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैंने जलते अंगारे को छू लिया हो। उसके हाथ की गरमाइश से मुझे अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से वापस खींचा
तो वो जोर जोर से हंसने लगा। चलता हूँ, मगर उम्मीद है कि फिर मिलेंगे, वो कहकर साइकिल से उतरा और चलने लगा। मेरी रुकी हुई सांस बहाल हुई और मैंने वहां से दौड़ लगाने में याफियत जानी। पीछे पलट कर नहीं देखा। मैंने बचपन से सुन रखा था कि पुरस्रार वाकयात में पीछे पलट कर देखना खतरे से खाली नहीं होता। वो दिन मेरा बेहद परेशान गुजरा और मैं जल्द ऑफिस से छुट्टी लेकर दूसरे रास्ते से घर पहुंच गया। दादी मुझे देखकर समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। तबीयत तो ठीक है, मेरा पुत्र ऐसे क्यों निढाल होकर लेट गया है? दादी ने मेरे करीब आकर मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, तो दिल में चाहा कि उन्हें सुबह वाला सारा वाकया सुना दूं, मगर फिर इस ख्याल से कि कहीं वो ज्यादा परेशान न हो जाए मैं खामोश रहा। मेरे पुत्र को तो बुखार है, चल जल्दी उठ, मैं हकीम साहब से तुझे दवा ला कर देती हूँ। दादी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो मैंने नरमी से उनका हाथ हटाया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगा। दादी, मैं अब छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो आप मुझे दवा दिलाने अपने साथ लेकर जाएंगी, मैं खुद चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर दादी नाराज हो गई और मेरे बुखार का लिहाज किए बगैर मुझे एक धप लगाकर बोली, जरा क्या कद निकाल लिया, दादी के साथ चलते हुए शर्म आने लगी है? बेशर्म ना हो तो आने दो, तुम्हारे दादा को बताती हूँ सब। भूल गया वो दिन जब दादी की उंगली पकड़कर रोते हुए स्कूल जाता था? दादी ने अपने तय मुझे आईना दिखाया, मगर मैं भी शरारत के मूड में था। मैंने कब दादा अब्बू को मना किया है? उनका अपना घर है, जब जी चाहे आए। इस घर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। मैंने हंसकर कहा तो दादी गुस्सा दिखाती उठ खड़ी हुई। तेरा कुछ नहीं हो सकता लड़के। उनके गुस्से में भी ऐसा प्यार छुपा था कि कभी मुझे और समीना को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। थोड़ी देर बाद दादा घर आए तो दादी खाना बना रही थी। उनके पास ही मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर हाथ गर्म करने लगी। दादी बोलना शुरू हुई, साथ साथ मेरी शिकायतें भी लगा रही थी। वो दिन भर की रोदात शोहर को ना सुना देती तो उन्हें सुकून नहीं मिलता था, और दादा भी इतने गौर से उनकी सारी बातें सुनते और उन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते जैसे उस वक्त यही दुनिया का सबसे अहम काम हो। बल्कि मैं तो अक्सर ये बात सोचता कि यही इनकी 50 साल कामयाब शादीशुदा जिंदगी का राज था। खैर, दादी बड़े राज भरे अंदाज में दादा से कुछ कहने लगी। ये अलग बात थी कि बराबर ही कमरे में मुझे उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तो लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, इनायत ज़रूर कोई बात छुपा रहा है। बचपन से मेरे हाथों में पला बड़ा है, इसका हर रंग पहचानती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप ही पूछगछ करके देख ले, मुझे तो इसने कुछ नहीं बताया। खाना खाकर दादा मेरे पास ही आकर मुझे सूप पिलाने लगे तो दादी जानबूझकर हमें तन्हाई देने के लिए किचन में ही काम करने में मसरूफ रही। बता पुत्र, क्या परेशानी है? सुबह को तू भला चंगा घर से निकला था, अचानक से तेज बुखार कैसे चढ़ गया? दादा ने तफ्तीश शुरू की। दादा जान, पहले बताइए डांटेंगे तो नहीं? मैं दादा को बताना भी चाह रहा था और साथ दिल में ये डर भी था कि वो फूलों वाले रास्ते से गुजरने पर नाराजगी का इजहार न करें। दादा ने प्यार से यकीन दहानी करवाई कि उस वक्त वो सिर्फ मेरी परेशानी की वजह सुनना चाहते हैं। तो मैंने सुबह वाला पूरा वाकया उनके गोशे गुजार कर दिया। मेरी पूरी बात सुनकर दादा परेशान होकर सोच में पड़ गए और कुछ देर खामोश बैठे रहे। तुम अपनी दादी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे, वो परेशान हो जाएगी। हो सकता है वो तुम्हें दोबारा शहर भी ना भेजे, समझ गए? दादा ने मुझे खबरदार किया तो मैंने उनकी बात मानने का वादा किया। मैं अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा दादा, मैंने किसी छोटे बच्चे की तरह डरते हुए कहा तो दादा बोले, ठीक है, मगर ये मसले का हल नहीं है। कल को गांव का कोई दूसरा शख्स वहां से गुजरा तो वो इसी तरह उसे भी तंग करेंगे। मुझे जरूर कोई हल तलाश करना होगा। दादा ने अटल अंदाज में कहा तो मेरा दिल दहल गया। नहीं दादा जान, आप कोई रिस्क नहीं लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मैं जज्बाती अंदाज में बोला तो दादा मुझे नरमी से समझाने वाले अंदाज में बोले, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा इनायत। तुम नहीं जानते मगर मैंने एक ज़माना देखा है, इन जिन्नात की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इस रास्ते से हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरा दोस्त महरोश इसी जगह कत्ल किया गया था। महरोश के साथ जिन्नात थे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जिन्नात से बातें करता था, उनका गहरा दोस्त था, मगर मुझे ये सब हकीकत से दूर बातें लगती। तभी सारी बातें जानने के बावजूद इस किस्से से हमेशा दूर रहता।
اس کے دوست جنات مہروش کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اس راستے پر پہرا دیے کھڑے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک روز ان کے دوست کا قاتل اس راستے سے ضرور گزرے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کیسے جانتے ہیں دادا؟ میرے سوال پر دادا نے چہرہ جھکا لیا۔ ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا عنایت جو میں تمہیں بتا سکتا، وہ تمہیں بتا دیا، اس سے زیادہ کہ مجھ سے امید نہ رکھو۔ یہ سن کر میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور سوال کرنے سے گریز کیا۔ یہ راز بھی مجھ پر پہلی بار کھلا تھا کہ مہروش نامی شخص دادا کا دوست تھا۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی مگر میں نے ظاہر نہیں کیا۔ دادا مزید بولے، میں وہ بد نصیب دوست ہوں جو ایک مقدمہ درج نہیں کروا سکا۔ کیوں دادا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا؟ میں کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ دادا ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، اس کی وجہ وہ وعدہ ہے جو ایک روز مہروش نے مجھ سے کیا تھا۔ کیسا وعدہ دادا؟ میرے لہجے میں تجسس اتر آیا۔ مہروش کے بابا پر جائیداد کا مقدمہ تھا اور کئی سال اور زندگیاں مقدمے کی زد میں آ کر متاثر ہو چکی تھی۔ اس کے بابا نے دن اور رات کا فرق بھلا کر اپنے بچوں کو یتیموں جیسی زندگی دے کر یہ مقدمہ لڑا تھا۔ زندگی کی ہر خوشی سے منہ موڑ کر آخرکار یہ مقدمہ جیت ہی گیا۔ وہ شاید بچوں کو زمین کے ٹکڑے دینے کے لیے جی رہا تھا، کیونکہ مقدمہ جیتنے کے 2 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مہروش اور اس کے بھائیوں نے بے شک زمین اور دولت حاصل کر لی، مگر ان کی زندگی میں باپ کی کمی کا جو خلا تھا وہ کبھی پر نہیں ہو سکا۔ جب بھی وہ میرے پاس بیٹھتا دکھی دل سے یہی ذکر کرتا کہ انسان دولت کی جنگ میں کبھی اپنوں کا ساتھ نہ چھوڑے۔ دولت پھر مل جاتی ہے مگر اپنوں کے ساتھ گزرنے والا وقت کہیں اور کٹ جائے تو انسان ساری عمر بھی اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہے تو کسی صورت گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ ایک روز اسی طرح دل برداشتہ ہو کر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی زندگی میں مقدمے کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی کا وقت داؤ پر نہ لگاؤں، حتیٰ کہ مجھے اپنے بڑے سے بڑا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کیوں نہ کرنا پڑے۔ شاید قدرت کو میرا یہی امتحان لینا تھا کہ مہروش کے باپ کے مخالفین مقدمہ ہارنے کے بعد بظاہر سکون سے بیٹھ گئے، مگر انہوں نے نسل در نسل چلتی دشمنی کو دل سے نہیں نکالا، اور مہروش کا قتل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دادا نے پورا قصہ سنا کر ایک ٹھنڈی آہ بھری تو میں نے تسلی امیز انداز میں ان کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، میں حکیم جی سے کہہ کر تمہارے لیے دوا لے آیا تھا، تمہاری دادی ابھی تمہیں دیتی ہیں۔ دادا نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہنستے مسکراتے سب سے محبت کرنے والے میرے پیارے دادا دل میں اتنا بوجھ لیے زندگی گزار رہے تھے، یہ میں نے اس روز جانا۔ مجھے ان کے دوست کے بارے میں جان کر دکھ ہوا۔ جس واقعے کو میں اتنا معمولی اور من گھڑت سمجھتا تھا اس کی سچائی مجھے آج معلوم ہوئی تھی، اور میں اپنے خیالات پر شرمندہ بھی تھا۔ یہی سوچتے ہوئے نیند میں چلا گیا۔ اگلے روز گھر پر گزار کر تیسرے روز صبح کے وقت دادا نے مجھے جلدی جگایا اور خاص ہدایت کی کہ آج مجھے شہر جاتے ہوئے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ تو اس طرح سمجھا رہے ہیں جیسے عنایت آج پہلی بار شہر جانے کے لیے نکل رہا ہے، دادی نے تنگ آ کر کہا تو دادا خاموش رہے۔ خیر، میں دادی کے ہاتھ کے بنے دیسی گھی کے پراٹھے گرما گرم چائے پی کر گھر سے نکل گیا۔ 2 دن بعد گھر سے نکل کر میں خاصا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے وقت سائیکل چلانے سے اچھی خاصی ورزش ہو جاتی جس سے پورا دن پرسکون گزرتا۔ خیر، اس روز میں گھر واپس گیا تو سمینہ کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بچے ماموں ماموں پکارتے مجھ سے لپٹ گئے۔ کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئی تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ امی ابو کی یادیں، بچپن، لڑکپن، اسکول اور ڈھیر ساری شرارتوں کے قصے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ دادی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ دادا ابھی تک گھر میں نہیں آئے تھے، ورنہ وہ روز رات اس وقت تک لازمی گھر پہنچ جاتے تھے۔ اپنے دادا کو تو دیکھو، کہاں رہ گئے، اب تک نہیں آئے۔ دادی نے مجھے اٹھانا چاہا تو میرے لیے رضائی سے نکلنا مشکل ہو گیا، سو بہانہ بناتے ہوئے بولا، کسی دوست نے کھانے پر روک لیا ہوگا، آ جائیں گے دادی۔ میں کہہ رہی ہوں جا کے دیکھ، چشمہ بھی آج گھر پر بھول گئے ہیں اپنا، انہیں تو اندھیرے میں صحیح سے راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ دادی نے ان کا چشمہ مجھے پکڑاتے ہوئے باہر کی راہ دکھائی تو مجھے گرما گرم رضائی کو الوداع کہہ کے اٹھنا ہی پڑا۔ سمینہ نے مجھے گرم شال پکڑاتے ہوئے کہا، یہ اوڑھ لو بھائی۔ میں مسکراتے ہوئے شال اوڑھ کر لالٹین ہاتھ میں تھام کر گھر سے نکل گیا۔ میں گاؤں کے صاف ستھرے راستے پر لالٹین پکڑے چل رہا تھا۔ میرا رخ چچا اختر کے کھجور کے باغ کی طرف تھا، جہاں بنی چھوٹی سی بیٹھک میں اکثر دادا اور ان کے دوستوں کی محفل لگتی۔ میں جیسے ہی پہنچا وہاں پڑا سناٹا اور گیٹ پر پڑا تالا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں وہاں سے پلٹنے لگا تھا کہ
मेरा पाँव किसी चीज़ से उलझा और मैं लड़खड़ा गया। अगले ही पल लालटेन मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर गिरने की वजह से वो बुझ चुकी थी। मैं कुछ देर तक गुमसुम खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। आखिरकार मैंने चांद की रोशनी में चलने का फैसला किया और बुझी हुई लालटेन को हाथ में पकड़कर आगे बढ़ने लगा। मैं गांव के रास्तों से अच्छी तरह मानूस था, सो मुझे चलने में कोई ख़ास दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हर तरफ देखने के बाद मैं सख्त मायूस होकर वापस पलटा ही था कि मुझे दादाबू फूलू वाले रास्ते की तरफ से आते दिखाई दिए। मैं उनकी शबीह और कदमों की आवाज़ से उन्हें पहचान चुका था। दादाबू, आप इतनी देर तक कहाँ थे और क्या मैं आपसे वजह जान सकता हूँ? दादी जान आपके लिए बेहद परेशान है, मैंने एक ही सांस में सब कह दिया तो दादा थोड़े खफा लहजे में बोले, तुम्हें किसने कहा था मेरी जासूसी करने के लिए? दादी ने भेजा था, और कौन भेजेगा भला? मैं चिल्लाकर बोला तो दादा को भी गुस्सा आ गया। बस आइंदा इस तरह अखबारी नुमाइंदा बनकर मेरे पीछे मत आना, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो गुम जाऊंगा। इसी नोक झोंक में हम घर पहुंच गए। ठहरा कर दादी ने दादा की वो खबर ली कि मुझे नहीं लगता था कि दादा आइंदा ऐसी गलती दोबारा दोहराएंगे। उस वक्त तक समीना भी सो चुकी थी, सो मैं भी सोने के लिए लेट गया। अगले रोज मैं मामूल के मुताबिक सुबह जल्दी उठकर जाने के लिए तैयार होने लगा। समीना के बच्चों तस्मिया और दिलशाद की वजह से घर में खूब रौनक लगी होती थी। आज काम पर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, मगर जाना भी जरूरी था। मैं समीना को आज रात भी रुकने का कहकर घर से निकल गया। पिछली रात हमारी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी और सच तो ये है कि घर में बहन के होने का एहसास ही बहुत खुशी देता है। दादा अब्बू की साइकिल में कुछ मसला था। मैं पैदल ही घर से निकल गया। मेरा इरादा था कि गांव के बाहर सड़क तक जाकर कोई दूसरी सवारी देख लूंगा। इतना लंबा रास्ता पैदल ही तय करना था। मैं उन्हीं सोचों में गुम आगे बढ़ रहा था कि सामने से आदिल आता दिखाई दिया। वो मुझे देखकर हाथ हिलाता हुआ मुस्कुराने लगा। कैसा है जिगरी? हाथ मिलाने के बाद उसने पूछा। ठीक हूँ, लगता है आज फिर से तेरा शहर जाने का चांस लग गया है, मैंने हंसते हुए कहा तो वह कहका लगाकर बोला, तुझे तो पता है कि तेरा भाई ऐसे चांस मिस नहीं करता। हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि मेरे पाँव में कुछ चुभा। मैंने फौरन जूते के नीचे आई चीज को देखा तो हैरान रह गया। वो एक चमकती हुई अंगूठी थी और नॉर्मल साइज से काफी बड़ी थी। मैंने उसे उठाकर हाथ में पकड़ा तो उसकी चमक बहुत खूबसूरत थी। लगता है कि ये जादुई अंगूठी है। आदिल ने अपनी अक्ल के मुताबिक बात की तो मैंने अपना सर पीट लिया। जादुई अंगूठी का हमारे गांव में भला क्या काम? ये जादूगरों का गांव नहीं है मेरे दोस्त, मैंने मुंह बनाकर कहा और इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर उसके मालिक को तलाश करने लगा। मेरे दोस्त, इसका मालिक इधर कहीं होता तो यकीनन ये बेचारी यहाँ इस तरह तुम्हारे कदम चूमने के लिए रास्ते में ना पड़ी होती। आदिल ने बड़ी अक्लमंदी से बात की तो मैं सोच में पड़ गया। चलो चलते हैं, मैं इसे दादा अब्बू के हवाले कर दूंगा, वही इसको इसके मालिक के हवाले करेंगे। हो सकता है वो किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो किसी अपनी गुमशुदा अंगूठी के लिए परेशान होगा। मैंने कहा तो आदिल ने मेरी बात से इत्तफाक किया। गुड आइडिया। और हम दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर गए थे कि हमें शेर की दहाड़ सुनाई दी। यहाँ करीब ही शेर है। हम दोनों सहम गए। इससे पहले कि शेर अपना जलवा दिखाकर हमें अपना लुकमा बनाता, हमने वहां से दौड़ लगा दी। फूलों के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, सो हमने फूलों वाले रास्ते पर आकर लंबे लंबे सांस लिए। भागने की वजह से हमारी सांस फूल गई थी। दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। तुम्हारी हिम्मत है जो रोज अपनी जान दांव पर लगाकर शहर जाते हो। आइंदा मेरी तौबा, दादा की दवा भी आज बहुत मिकदार में ले आऊंगा ताकि दोबारा जाना ना पड़े। आदिल ने कहा तो मैं हंस पड़ा। मुझे डर नहीं लगा, मैं तो बस तुम्हारा साथ देने के लिए दौड़ रहा था। मैंने बहादुर बनने की नाकाम कोशिश की तो आदिल हंसते हुए बोला, इसीलिए मेरे से आगे तुम थे। हम दोनों उसी तरह हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे कि थोड़ा आगे जाकर देखा कि दो नौजवान आपस में लड़ रहे थे। मेरी अंगूठी तुम्हारे पास है? मुझे पक्का यकीन है। शाबाश, मेरी अंगूठी वापस करो वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उनमें से एक ने दूसरे का गिरेबान पकड़ा था और बहुत गुस्से में कह रहा था। हम दोनों आगे बढ़े। ये वो दौर नहीं था कि किसी की लड़ाई होती देखकर खामोश तमाशाई बनकर दूर खड़े होकर सब देखा जाता। ऐसे में लोग आगे बढ़कर सुलह करवाना पसंद करते थे और लड़ाई झगड़े को शैतान का खेल समझा जाता। सो हमने भी आगे बढ़कर मामला निपटाना चाहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी अंगूठी इसने चुराई? मैंने पूछा तो नौजवान लड़का दूसरे का गिरेबान छोड़कर मुझे घूर कर देखने लगा, क्योंकि ये कल से मुझसे मांग कर पहन कर जा चुका था और अब मुझे वापस देने का वक्त आया तो इसकी नीयत बदल गई
और मुझे मेरी नीले रंग वाली अंगूठी वापस देने को तैयार नहीं है। ये मसला ये लड़के हल नहीं कर सकते। हम आज रात को अपने नए सरदार से बात करेंगे। दूसरे लड़के ने हमारे सामने कोई सफाई देने के बजाय बात ही बदल दी, जिसे सुनकर हमें शदीद हैरत का झटका लगा। कौन सरदार? क्या किसी दूसरे गांव से हो यहाँ पर? यहाँ तो सरदार का कोई सिस्टम नहीं है। इससे पहले कि वो आदिल की बात का जवाब देते, मैंने मुट्ठी खोलकर उनके सामने की। क्या यही नीले नगीने वाली अंगूठी तुम्हारी है जो मुझे रास्ते से पड़ी हुई मिली? क्या तुम इसी के लिए लड़ रहे हो? अंगूठी देखकर वो नौजवान खुश हो गया और खुशी भरे अंदाज में बोला, बिल्कुल यही मेरी अंगूठी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी कीमती अंगूठी वापस करके हमारी 100 साल पुरानी दोस्ती को टूटने से बचाया। 100 साल? इस बार मेरे और आदिल के मुंह से एक साथ लफ्ज़ अदा हुए। उसी लम्हे हम दोनों को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो वहां से भाग निकले। सही कहते लोग कि फूलों वाले रास्ते पर जिन्नात का बसेरा है। रोड पर आकर हमने दम लिया। आदिल ने फूली सांसों के साथ कहा तो मैंने सर हिलाकर उसकी तायद की। उस दिन घर वापस आया तो दादी को बुखार था। पहले मैं उन्हें गांव के बड़े पुराने और तजर्बाकार हकीम के पास ले गया। दादी को हर बार उन्हीं की दवाई से आराम आता। घर वापस आए तो समीना ने खाना बना रखा था और दोनों बच्चों ने घर में धमाल डाल रखी थी। दोनों सुकून से बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ ना सुनाई दे। मामू के घर आकर ज्यादा ही सर चढ़ जाते हो। समीना ने दोनों बच्चों को डांट कर बिठाया तो मैंने टोक दिया, बच्चे हैं, शरारत और शोर शराबा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब इस उम्र में तो हम करने से रहे। मैंने हंसकर दादी को सूप पिलाते हुए कहा तो वो बोली, शुक्र है आपको उम्र बढ़ने का अंदाजा तो हुआ। दादा को बोलूंगी कि कल ही चचा असगर से निकाह की तारीख लें। आखिर इस जून में आपकी मंगनी को पूरे 5 साल हो जाएंगे। बात मशरिक की हो रही है मगर तुम घसीट मगरब में ले गई हो। जब तक मैं शहर में खरना बसा लूं शादी का नाम भी मत लेना। उसकी बात सुनकर मैं जरा मजबूत लहजे में बोला, अच्छा भाई खाना खा लें, दादा पता नहीं कब आएंगे, आपको भूख लगी होगी। समीना ने कहा तो मैं हाथ धोने खड़ा हुआ। समीना के हाथ में भी दादी वाला जायका था। आलू गोश्त वैसे भी मेरी पसंदीदा डिश थी, सो मैंने पेट भरकर खाया और दिल खोल कर तारीफ की। खाने के बाद समीना को कुछ पैसे इनाम के तौर पर दिए तो वो खुश हो गई। वक्त गुजर रहा था मगर दादा अब तक घर नहीं लौटे। दादी आंखें बंद किए लेटी थी। दोनों बच्चे खाना खाने के बाद अंधेरा फैलते ही लिहाफ में दुबक कर सो गए। दादी भी दवा खाकर सो गई। दादा आ गए घर? कुछ देर बाद दादी ने आंखें खोलकर पूछा तो समीना ने बता दिया कि नहीं आए। वे पुत्र इनायत, दादी ने कड़क आवाज में मुझे पुकारा। वो इस अंदाज में मुझे उस वक्त पुकारती जब उन्हें कोई जरूरी बात कहनी होती। तेरे दादा के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। मुझे दादी की बात सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा। नहीं दादी, आपको जरूर गलत फहमी होगी। मैंने उन्हें तसल्ली देना चाही तो वो बोली, इतनी रात को घर से बाहर रहना कोई शरीफ आदमी का काम है क्या? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है पुत्र। कहीं तेरे दादा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? दादी के लहजे में वाज़े खौफ था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दादी। दादा आप जैसी खूबसूरत और वफादार बीवी को छोड़कर भला दूसरी शादी क्यों करेंगे? इस बार समीना ने उनको तसल्ली दी जबकि मुझे उनकी बात पर हंसी आई, जिसे मैंने मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। समीना का भी शायद ऐसा ही हाल था। और वैसे भी हम आपके अलावा किसी दूसरी औरत को दादी मान ही नहीं सकते। क्या आपको दादा के साथ हमारी मोहब्बत पर भी शक है? मैंने दादी को जज्बाती ब्लैकमेल करना चाहा मगर दादी ने जैसे मेरी बात सुनी नहीं। वे इनायत, जा और जाकर अपने सवारा गर्द दादा को ले आ। हाय, सोकन के ख्याल से दिल बैठा जा रहा है मेरा। दूसरी शादी की तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस नूरे को, दादी गुस्से में कह रही थी। ये लो लालटेन और जल्दी से जाओ। दादी की पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। समीना ने जल्दी से मुझे जलती हुई लालटेन पकड़ाई और मैं उठ खड़ा हुआ। माचिस भी दे दो, कभी ये मुतरमा बुझ कर मेरी दुनिया अंधेर न कर दे। मेरी बात सुनकर समीना ने मुस्कुराते हुए मुझे माचिस पकड़ाई और मैं बड़बड़ाता हुआ चप्पल पहनकर बाहर की तरफ चल पड़ा। एक तो दादा भी ना जल्दी आ जाए तो मुझे रजाई से निकलकर उनकी तलाश में भटकना ना पड़े। मैं चलता रहा। ठंडी हवा मेरे बदन से टकरा रही थी। सद शुक्र के घर से निकलते वक्त समीना ने मेरे कंधों पर गर्म शाल डाल दी थी, वरना आज जरूर मेरी कुल्फी बन जानी थी। मैं चलता हुआ इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर दादा को देखने की कोशिश कर रहा था मगर दादा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं चलते चलते थक गया और करीब एक बेंच नजर आया तो उस पर बैठ गया। अब तो मुझे लग रहा था कि दादा ने दूसरी शादी कर ली है, इस वजह से वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर वाकई दादा ने दूसरी शादी कर ली तो उन्हें दादी से बचने के लिए खैर मनानी चाहिए। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरे सामने दरख्त जो हवा से झूल रहा था हिलकर बाएं जानिब हुआ तो मुझे दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। मैं तजस्सुस के मारे उठकर खड़ा हुआ।
आगे बढ़कर दरख्त के पीछे जाकर गौर से देखने लगा। दूर कहीं आग जलाकर रोशनी की गई थी और बहुत से लोग कतार में बैठे दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ आगे बढ़ा, मामला समझने की कोशिश की तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। दादा उन सब के सामने खड़े कुछ कह रहे थे। दादा इतनी रात के उन लोगों के साथ क्यों खड़े थे और वो सब मुअद्दब अंदाज में उनके सामने क्यों खड़े थे? इन दो सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं कुछ आगे बढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो फूलों वाला रास्ता था। तो क्या दादा की उन जिन्नात से दोस्ती हो गई है और दादा उनकी दोस्ती में दादी से अपना 50 साल रिश्ता भुलाकर उन जिन्नात से ताल्लुक निभा रहे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं हर डर और हर किस्म के खौफ को जहन से झटक कर आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे अंधेरी रात में न तो जिन्नात का खौफ सता रहा था, न ही ठंडी बर्फ सी हवा मेरे वजूद पर कोई असर दिखा रही थी। आंसू निकलकर मेरे गाल भिगो रहे थे, मगर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। फिक्र थी तो सिर्फ अपने दादा अब्बू की, जो उस वक्त सर पर फूलदार टोपी पहने और हाथों में लाठी थामे पूरी तरह जिन्नात से मुतवज्जे थे, जैसे वो बादशाहों और सब उनकी रियाया, फिर वो सरदारों और उनकी बात मानना उनकी जिम्मेदारी हो। दादा, ये सब कौन है और आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? मैंने करीब 5 कर तेज आवाज में कहा तो दादा हैरत भरी नजरों से देखने लगे। मैंने तुम्हें इस रास्ते पर आने से मना किया था, तुम्हें याद है? दादा के लहजे में गुस्सा था। सरदार, क्या हम इस लड़के को आपका हुक्म ना मानने पर सजा दें? उनमें से एक जिन्न आगे बढ़ा और दादा से सवाल किया। जरूरत नहीं है, दादा ने सख्त लहजे में कहकर हाथ उठाकर उसे रोका। ये सब तुम्हारे दोस्त, इन्हें गलत मत समझो। दादा ने मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर समझाने के अंदाज में कहा तो मुझे जैसे करंट लगा। आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं, इसके बावजूद कि इन्होंने आपको इस वक्त आपके घर वालों से दूर यहाँ खड़ा कर रखा है। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा तो दादा ने एक नज़र उन सबको देखा और उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, ये मेरे प्यारे दोस्त के करीबी जिन्नात हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। और याद रखो, इंसानों की तरह जिन्नात भी रहम और मोहब्बत के उतने ही मुस्तहिक हैं जैसे कि इंसान। वो मजीद बोले, मैं इनकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सका और सिर्फ 2 दिन घर पर देर से पहुंचने की वजह से बताओ तुम्हारी या तुम्हारी दादी की ऐसी कौन सी हक तलफी हो गई जिसकी वजह से तुम मुझे और इन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हो? ये सब सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैंने दादा जान और जिन्नात से माजरत करने में देर नहीं की। मैं माफ़ी चाहता हूँ दादा जान, इन सब से भी दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि किसी के बारे में गलत गुमान और बुग़्ज़ रखना वाकई गलत बात है। शाबाश लड़के, तुम एक समझदार लड़के हो। तुम्हारी बात से हमें अंदाज़ा हो गया कि तुम ही हमारे सरदार के पोते हो सकते हो। हम अपने दोस्त महरोश के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने तक यहीं मौजूद हैं। जिस रोज़ वो अपने अंजाम को पहुंचेगा, हम और हमारा ख़ानदान अपने कबीले में वापस चले जाएंगे। उनमें से एक जिन ने आगे बढ़कर कहा और अपनी उंगली से एक हीरे की अंगूठी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्त। मैंने इनकार किया तो वो मुस्कुराकर बोला, तुम हमारे मेहमान और पहली मुलाकात में हमारे यहाँ किसी मेहमान को खाली हाथ रुखसत नहीं किया जाता। इतने प्यार भरे अंदाज पर मैं मज़ीद इनकार नहीं कर सका और वो खूबसूरत और महंगी तरीन अंगूठी थाम ली। आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। क्या मैं अब अपने दादा को यहाँ से ले जा सकता हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा तो जिन्नात भी मुस्कुरा दिए। इससे पहले कि वो कुछ कहते दादा अब्बू बोले, वाकई रात काफ़ी गहरी हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। ये कहकर उन्होंने अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया तो सब जिन्नात ने हाथ हिलाकर अलविदा किया। मैंने भी उसी अंदाज में हाथ हिलाया और दादा अब्बू मेरी तरफ मुड़े तो मैंने भी कदम बढ़ाए। चंद कदम बढ़ाकर जैसे मैं होश में आया, महसूस हो रहा था कि मैंने कोई ख्वाब देखा। मैं बेयकीन सा था। मुड़कर देखा तो वहाँ किसी जिन्न और आग के अलाव का नामो निशान नहीं था। घटाटूप अंधेरा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मैंने हैरत से दादा की तरफ देखा, कोई हैरत का जहाँ पर नामो निशान नहीं था। उनके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। मैंने अपनी दाएं हाथ की तीसरी उंगली को देखा तो हीरे की चमकती अंगूठी तमाम वाकयात के सच्चे होने का सबूत पेश कर रही थी। दादा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे मेरा हैरत भरा अंदाज वो इंजॉय कर रहे हों। फिर हम मामूल की बातों में मसरूफ़ हो गए। घर पहुंचे तो दादी सो चुकी थी और समीना दरवाज़ा खोलने के लिए जाग रही थी। दूसरी ही दस्तक पर उसने दरवाज़ा खोला। उसने दादा अब्बू से खाने का पूछा तो उन्होंने बहाना बनाकर इनकार कर दिया कि वो अपने एक दोस्त के साथ खाना खा चुके हैं। वो मुतमईन होकर सोने के लिए लेट गई थी। अगले रोज़ ऑफिस जाने के लिए मैं घर से निकला तो रात वाला वाक़या जहन में घूम रहा था। आज मैं बिला खौफ व खतर फूलों वाले रास्ते से गुजर गया। कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। एक पल मुझे महसूस हुआ कि दरख्तों की शाखों पर कोई गौर से मुझे देख रहा है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था।
میں نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اس دن میں شام کو گھر پہنچا تو دادا ابو بے چینی سے گھر کے باہر ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے۔ کیا بات ہے دادا ابو، سب خیر تو ہے؟ میں نے ان کے قریب آ کر پوچھا تو وہ بولے، خیر ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ دادا جان آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو، دادا ابو نے آج کا اخبار میری طرف بڑھایا اور ایک خبر کی طرف اشارہ کیا۔ 6 آدمیوں کے قتل میں ملوث شخص بہادر شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 4 قتل ثابت ہونے پر کورٹ میں سزائے موت سنا دی گئی۔ بڑے حروف میں یہ الفاظ پڑھ کر میں نے دادا کی طرف دیکھا تو انہوں نے جیسے مجھ پر حیرت کا پہاڑ گرا دیا۔ یہ مہروش کا قاتل ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا دادا، میں خوش ہو کر بولا۔ ہاں، آج مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا بیٹا، جہاں ہم بے بس ہو کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں وہاں انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر جب حرکت میں آتی ہے تو ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیتی ہے، جیسے آج مہروش کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دادا ابو کی آنکھوں میں اپنے دوست کو یاد کر کے آنسو آ گئے۔ میں اب کھل کر جی سکوں گا بیٹا، مجھے سکون کی نیند آئے گی۔ تم جانتے ہو اتنے سال سے اس خیال پر میں پرسکون نیند نہیں سو سکا کہ اپنے دوست کے قاتل کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا سکا۔ اس کے باوجود میں جنات کی مدد سے اسے مزہ چکھا سکتا تھا، مگر میں نے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا۔ شاید اسی صبر کا صلہ مجھے آج ملا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا دوست آج بہت خوش ہوگا۔ دادا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کے لہجے اور آواز سے شکر گزاری عیاں تھی۔ انہیں پرسکون دیکھ کر میرے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ ہمیں یہ خوشخبری جنات کو دینی چاہیے، میں نے کہا تو دادا ابو میرے ساتھ پھولوں والے راستے کی طرف چل دیے۔ سردیوں کے دن تھے، سو شام ہوتے ہی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو گئے۔ پورا گاؤں سناٹے اور خاموشی کے لپیٹ میں تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں اندھیرے اور خاموشی نے ہمارا استقبال کیا۔ کل یہیں پر محفل جمی تھی اور آج کتنی خاموشی ہے اس جگہ۔ میں نے کہا تو دادا ابو نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ جنات اپنی بات پر ثابت قدم رہے اور یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں شاید۔ کچھ دیر تک دادا جان اداس کھڑے تھے، اپنے دوستوں کو یاد کرتے رہے۔ پھر ہم دونوں وہاں سے گھر کی طرف چلنے لگے۔ آج میری زندگی کا ایک اہم باب ختم ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب میں تمہاری دادی کی ساری شکایتوں کو دور کر سکوں، دادا جان نے مسکرا کر کہا تو میں ہنس پڑا۔ دادا جان، میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی شریف انسان ساری عمر اپنی بیوی کی شکایات کو دور نہیں کر سکتا۔ بات تو 100% درست کی ہے برخودار، دادا جان نے کہکا لگایا۔ اسی طرح بڑے خوشگوار انداز میں ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ سمینہ نے صبح اپنے سسرال جانا تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ کچھ روز مزید رک جاتی پتر، دادا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ منہ بسور کر بولی، رکوں تو تب نا جب گھر میں بھر جائی ہو۔ بس کر دے سمینہ، ہر بات کو موڑ کر میری شادی کی طرف نہ لے کر آیا کر۔ میں نے دو بدو کہا تو دادا ابو نے مجھے آنکھیں دکھائی۔ سمینہ پتر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بہت جلد تیری شادی کی تاریخ رکھنے والی ہوں میں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں کہ اس عمر میں بھی چولہا چوکی سنبھالوں۔ دادی نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیا تو میرے پاس سوائے خاموش رہنے کے اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، سو میں نے چپ رہنے میں یافیت جانی۔ اور پھر دادی نے اپنا کہا سچ بھی کر دکھایا۔ فہرین ہماری زندگی میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے پورے دل سے دادا اور دادی کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی دادا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ ان کے انتقال کے بعد دادی بہت زیادہ اداس رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے کمپنی کی طرف سے پروموشن کے بعد گھر اور گاڑی بھی ملی تو میری درینہ خواہش پوری ہو گئی اور ہم یہاں شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آج بھی جب سمینہ سے ملنے کے لیے میں گاؤں جاتا ہوں تو پھولوں والے راستے سے گزرنا کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ جب بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دادا کے بہت سے دوست مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، جن کی دی انگوٹھی آج بھی میری انگلی میں موجود ہے۔ اور میری انگلی میں موجود اس انگوٹھی پر نظر پڑتے ہی
مجھے آج بھی وہ رات یاد آ جاتی ہے جس رات میرے دادا جان جنات کے سردار بنے ہوئے بڑی شان سے آگ کے الاؤ کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔